بسم الله الرحمن الرحيم. اور ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ بہت ٹیلنٹڈ یوتھ ہے، تو ان کو ایک اپرچونٹی دیں کہ وہ اپنا شو کیس کریں، اپنا ٹیلنٹ، اپنی اسکل شو کیس کریں اور دکھائیں لوگوں کو کہ وہ کتنے مہارت سے انہوں نے اپنے یہ کورسز جو انہوں نے اپنے کیے ان کو کس طرح سے وہ ڈیزائن بھی کرتے ہیں اور کتنی انہوں نے اسکل سیکھی. ماشاءاللہ اس وقت کافی لوگ آئے ہوئے ہیں. ہم اور بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بوتیکس اور فیشن ہاؤسز اور ہماری انڈسٹری کے تو حضرات ہیں ہی یہاں پہ، تو ان کے آنے سے ہم چاہ رہے ہیں کہ برج کریں جو ایک گیپ ہے جو بوتیکس کے درمیان اور یہ جو اسکل ورکرز ہیں ان کے درمیان جو ایک گیپ ہے ہم اس کو فل کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ایک ہمارا ایک بڑا مقصد ہے کہ اس سے ان کو ایک ہماری یوتھ کو، ہمارے جو اسکلڈ ورکرز ہیں ان کو ایک شو کیس کرنے کا اپنی اسکلز کو اس کا بہترین موقع ملے اور یہ اٹریکٹ کر سکیں بیسکلی جو بوتیکس ہیں. On behalf of UNDP project, I would like to say a few words of thanks to all two honorable guests and all the institutes that supported us through this period and all the textile organizations whom we are partnering with. I'll give you a brief presentation about the Youth Employment Project and the activities and about our model. And in meanwhile, I'd like to start the briefing about the Youth Employment Project with few demographics and few figures. As you all are aware that we are very lucky that Pakistan is among the 15 countries that has the population, the biggest populations. And out of that population, the 35% is consisting of youth. When we say youth, it is basically the age limit between 18 to 29 years or up to some extent we can say up to 32 years. And if we particularly talk about Karachi is consisting of approximately 38% on youth, the total population of Karachi. UNDP with the collaboration of USAID has started a 3-year project. I'll give the details of the project in my presentation, but before that, I'd like to just say to youth to come forward to build this country, to build this nation. I am deeply pleased and really appreciate the efforts of youth for coming forward to take the challenges of modern age. I do believe that with the collaboration of public-private partnership, the youth of marginalized areas in Karachi, particular, and whole of the province, in general, we take maximum benefit out of these joint ventures. I appreciate the contribution of UNDP through its youth employment project that has played a vital part in ensuring the opportunities for earning better and respectable livelihood. I also would like to appreciate the efforts placed by MITI, IACT, PHMA, PRG, TTI, along with STEVTAS, Government Polytechnical Institute of Women Vocational Training Institutes, Korangi, Liari, Dandi, for providing high quality training to the youth required job market, especially for career in the garment industry. I strongly hope that this event that showcases the talents of youth generate interest of large and small companies to offer employment to the youth to improve their livelihood. تو میں رضوانہ انور سے گزارش کروں گا، یہ ہماری گورنمنٹ پالیٹیکنک انسٹیٹیوٹ کی کورنگی کی یہ اسٹوڈنٹ ہے. پلیز. میرا تعلق لانڈی کے ایک چھوٹے سے علاقے سے ہے. میری اتنی ایجوکیشن نہیں ہے لیکن میں کچھ کرنا چاہتی تھی.
सिलाई तो मैं पहले से जानती थी, थोड़ी बहुत कर लेती थी, लेकिन फिर मैंने अपनी एक टीचर से सुना UNDP के कोर्स का। 2 मंथ की छोटी सी ट्रेनिंग है ये, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ मुझे। इससे मैंने अपने घर में एक छोटा सा इंस्टीट्यूट शुरू किया है। जो मैंने ट्रेनिंग हासिल की है वो मैं अपने इलाके की, अपने मोहल्ले की और लड़कियों को भी ट्रेनिंग दे रही हूँ, उससे और ज़्यादा लड़कियों को फ़ायदा हुआ। गो के छोटा सा मेरा सेंटर है, लेकिन UNDP की दी हुई ट्रेनिंग से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मैं इससे मंथली 10,000 से 12,000 में आराम से कमा लेती हूँ। नीलम, ये मिट्टी से इन्होंने ट्रेनिंग हासिल की है यूथ एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट के। नीलम प्लीज़ आएँ और अपनी स्टोरी। मेरे पास कोई स्किल नहीं थी, ना ही कोई मेरे पास ऐसा हुनर था कि मैं उसे अपना के आगे बढ़ सकूं। फिर मैंने UNDP के कोर्सेज का पता किया तो मुझे पता लगा कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ कोई फीस नहीं ली जाती, सारा मटेरियल यहाँ से मिलता है और सब चीज़ यहाँ से हमें प्रोवाइड की जाती थी, जिससे मेरा कोई खर्चा नहीं हुआ और मुझे बआसानी ये कोर्स में आगे बढ़ने का मौका मिला। अब माशाल्लाह मैं UNDP के कोर्सेज ड्रेस मेकिंग में मैंने लिया था, वहाँ की ट्रेनिंग के बाद मैं इतना आगे बढ़ पाई हूँ कि मैं अपना खुद का बुटीक चला रही हूँ और मैंने 2-3 लड़कियों को भी हायर किया है और मैं अपना बिजनेस करके उनको आगे बढ़ा रही हूँ, उनको सपोर्ट कर रही हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था और ये सब UNDP की वजह से हुआ है। और मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं अपने आप को सेफ समझती हूँ और हर लड़की मुझे लगता है यहाँ अपने आप को सेफ समझती है। सिमीडा हमारा एक फेडरल गवर्नमेंट का एक इदारा है जो हम छोटे और दरमियाने बिजनेसेस को सपोर्ट करते हैं। और क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे यूथ टेक्निकल ट्रेनिंग ले चुके हैं या लेने वाले हैं, इसके साथ साथ जो अभी हम एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जो जिक्र हुआ कि हम इन्हीं आप स्टूडेंट्स को हम एक छोटे बिजनेस शुरू करने की स्किल सिखाएंगे। क्योंकि टेक्निकली स्किल्स मिल गई बहुत अच्छी बात है। आपने देखा होगा जो भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, गारमेंट इंडस्ट्री में जिन वर्कर्स के पास हुनर के साथ साथ छोटी भी बिजनेस नॉलेज होती है, स्किल होती है, तो वो बिजनेस पर्सन, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन बन जाते हैं। तो हम इस प्रोजेक्ट के तहत कोशिश करेंगे कि आप में से जो भी जिन लोगों ने टेक्निकल ट्रेनिंग ली है उनको छोटा कारोबार शुरू करने की ट्रेनिंग दें। ना सिर्फ ट्रेनिंग देंगे बल्कि हम आपकी हैंड होल्डिंग करेंगे, आपको छोटा बिजनेस शुरू करने में हेल्प करेंगे। आपको किसी को अगर माइक्रो फाइनेंस जो डिफरेंट बैंक्स हैं या डिफरेंट NGOs हैं वहाँ से लोन मिलता है वो आपको दिलवाने में हेल्प करेंगे। आपको मार्केट के साथ या इंडस्ट्री के साथ, ताकि जहाँ पे आप जो अपनी प्रोडक्ट्स बनाएंगे वो सेल करने में हेल्प करेंगे। तो इस पूरे प्रोजेक्ट का जो ओवरऑल ये उसके कंपोनेंट्स हैं, ये हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीक में शुरू करेंगे। और आज जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उन सब से यही रिक्वेस्ट है, अपने जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ के जो प्रोजेक्ट की टीम है उनके साथ राब्ते में रहें। किसी भी माशरे के लिए करके तालीम बहुत ज़रूरी होती है और जब हम तालीम की बात करते हैं तो वो लोगों के जहन में आता है कि आम स्कूल या कॉलेज के अंदर जो बच्चे और बच्चियां तालीम ले रहे हैं वो तालीम होती है। बिल्कुल वो तालीम होती है, लेकिन यहाँ मैं उस तालीम की बात करना चाहता हूँ कि जो लोग प्रोफेशनल तालीम लेते हैं, यानी डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, हर किसी को हम चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बना सकते, तो हम क्यों नहीं चाइना को या ईरान को या वो ऐसे ममालिक जिनके यहाँ बेसिक तालीम के अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग मौजूद है, हमें ये मॉडल बनाना पड़ेगा। अगर तो हम इस मुल्क को, और इंशाल्लाह इस मुल्क को हम एशिया का टाइगर या वर्ल्ड में कोई मुकाम दिलाना चाहते हैं, तो हमारी नौजवान नस्ल जो है वही ये काम कर सकती है। लेकिन उसके लिए मैं मिनिस्टर साहब से, वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से, सबसे अपील करूंगा कि हमारी एक डायरेक्शन होनी चाहिए और वो डायरेक्शन वोकेशनल ट्रेनिंग। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध गवर्नमेंट भी इसमें बड़ा काम कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी बड़ा काम कर रही है, UNDP भी बड़ा काम कर रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेमन इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी अरसे से ये काम कर रही है। आज अल्लाह के करम से इस साल के
12,000 बच्चों और बच्चियों को हम वोकेशनल ट्रेनिंग दे के उनको रिस्क हलाल की तरफ लेके जा रहे हैं। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की, सिंध की तरक्की, चारों सूबों की तरक्की, ये तरक्की इन बच्चों से मुंसलिक है। हमें इसके ऊपर तवज्जो की ज़रूरत है। आज अगर हम ये काम कर लेंगे तो यही कौम पाकिस्तान को वो मुकाम दिला देगी जो किसी ज़माने में कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने उसको दिलाने के लिए पाकिस्तानी कौम से वादा किया था, और पाकिस्तानी कौम ने भी उनसे वादा किया था कि हम मेहनत और मेहनत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मेरा नाम मुदस्सिर इकबाल है। मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध में एक ऑफिसर हूँ। यहाँ पे मैं आया यूएनडीपी के इनविटेशन पे, और मेमन इंस्टीट्यूट की जो मैंने परफॉर्मेंस देखी और उनका टर्नआउट जो 12,000 स्टूडेंट्स सालाना टर्नआउट है, और 62 ट्रेड में ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। वेरी अप्रिशिएबल इनका वर्क है, और इसकी पजीराई भी होनी चाहिए, और गवर्नमेंट को भी इनको सपोर्ट करना चाहिए। और इसके अलावा यूएनडीपी ने आज जो इसी हवाले से इंटरनेशनल यूथ स्किल के हवाले से एक प्रोग्राम और एग्जीबिशन का ऑर्गेनाइज की है, वो भी उन्होंने इस टाइमली उनके साथ कर दिया है। और यौम आज़ादी की मुनासबत से भी बड़ा अच्छा है। इस इलाके के लोगों को जो टारगेट किया हुआ है, लांडी, कोरंगी और सुल्तानाबाद के, ये बड़ा काबिल सताइश है कि इन लोगों को ताकि ट्रेंड हो के ये लोग अपने खुद पैरों पे खड़े हो सकें। दैट्स वेरी गुड। मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ, और उनके लिए नेक तमन्नाएं भी हैं कि उनको अल्लाह ताला इन चीज़ों में कामयाब करे।